Hello, it's a fascinating morning from here in Delhi, and I hope that each one of you are absolutely fine and keeping yourself in a fine state of health. So, in this particular session, we have decided to actually start off with Accounting Standard AS 19, and along with that, we are also continuing our IFRS series. So, it becomes imperative for us then to actually compare Accounting Standard AS 19 with its corresponding Indian Accounting Standard, that is 17, Indian Accounting Standard 17. So after having wrapped up the initial topic and intricacies of Ind AS 19, then we are going to dwell about the differences which exist between Ind AS 17 and what we call Accounting Standard 17. Correct? Which means actually that Accounting Standard 19 and 17 are more or less absolutely same in many facets, and hardly there are 2 or 3 differences. So if you will cover those differences, it automatically means that you have covered the Indian Accounting Standard 17 also, along with what we call 19. So if you know the meaning of 19 and its gamuts and its intricacies, as I said, it means directly or indirectly we have also covered all the aspects of what we call Indian Accounting Standard 17. So in this particular session, we will first of all talk about the intricacies of the Indian Accounting Standard, Ind AS we will take up later on, but first we are going to cover up Accounting Standard 19, and then we will take up the part of the Indian Accounting Standard 17, which is corresponding to Accounting Standard 19, correct? Accounting Standard 19. So AS 19 we are going to cover first, and then we will cover its corresponding accounting standard Ind AS 9, Ind AS 17, Ind AS 17, correct? So, in order to understand Indian Accounting Standard 17, it becomes necessary for us to have a look over the Accounting Standard 19 first of all. So, Accounting Standard AS 19, as each one of you are very well aware of the fact, actually deals with accounting for leases, correct? So, first of all, we shall write about it, and we will try to understand the meaning of what we call leases. Here I am preparing a diagram, and you will have to pay attention towards this particular facet, correct? बेटे पहले लीजेस का मीनिंग हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर सेशन में पहले तो हम AS 19 की बात करेंगे. इनफैक्ट पहले 2-3 सेशन में AS 19 की बात करेंगे, और उसके बाद जब AS 19 के सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे, फिर हम Ind AS 17 की बात करेंगे, करेक्ट? सबसे पहले तो लीजेस का मतलब क्या है. लीजेस स्टैंडर्ड का जो ताल्लुक है वो लीजेस से है. मान लेते हैं मिस्टर ए जो है ये ओनर है. मिस्टर ए इज ओनर ऑफ द एसेट. मिस्टर ए इज ओनर ऑफ एन एसेट. इसने अपना कोई एसेट मिस्टर बी को लीज पे दिया. बेटे लीज में और नॉर्मल रेंटिंग में बेसिकली फ़र्क क्या होता है. लीज का मतलब है कि मैंने आपको कोई चीज़ रेंट पर दे तो दी, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर एट लीस्ट टिल द लीज पीरियड. जबकि नॉर्मल रेंटिंग में क्या होता है कि ओनर के पास पूरा अधिकार होता है और वो कभी भी बीच में इंटरफेयर कर सकता है. इसका मतलब है कि लीजेस में और नॉर्मल रेंटिंग में बेसिक फ़र्क ये है कि लीजेस में अगर ओनर अपना कोई एसेट लेसी को देता है, लेसी वो व्यक्ति है जिसको हमने एसेट दिया है, जो यूज़र ऑफ द एसेट है. अगर मैंने आपको कोई एसेट दे दिया, मान लेते मैंने आपको 5 ईयर्स के लिए लीज पर दिया, तो इसका मतलब है कि इन 5 ईयर्स में आप इस एसेट को ऐसे यूज़ करेंगे जैसे आप खुद एसेट के ओनर हैं. आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन बिटवीन व्हाट वी कॉल ड्यूरिंग दीज 5 ईयर्स और द लीज पीरियड एज वी कैन कॉल इट. तो सबसे पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए. मान लेते हैं मिस्टर बी नाम का जो आदमी है वो यूज़र है. ही इज़ द यूज़र ऑफ द एसेट. यूज़र, ही इज़ द यूज़र ऑफ द एसेट, करेक्ट? बाद में हम देखेंगे कि जो ओनर होता है उसको लेसर कहेंगे, और जिसको हमने एसेट लीज पर दिया है उसको हम लेसी कहेंगे. अभी हम इसको देखेंगे. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम मान लेते हैं कि ये जो एसेट ए ने बी को दिया, ये एसेट ए ने जो बी को दिया, इस एसेट की
इकोनॉमिक लाइफ 15 ईयर्स की है। इस एसेट की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो 15 ईयर्स की है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इज 15 ईयर्स। इकोनॉमिक लाइफ जो है एसेट की वो 15 ईयर्स की है। एसेट की जो इकोनॉमिक लाइफ तो है वो 15 ईयर्स की है। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब है दिस पर्टिकुलर एसेट कैन फेच मी रिटर्न फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 15 ईयर्स। करेक्ट। ये जो एसेट है इसकी अभी यूजफुल लाइफ 15 ईयर्स की है। अब ओनर ने ये एसेट मिस्टर बी को दिया। मान लेते हैं कि ए ने बी को ये एसेट इस डेट से लेकर के इस डेट तक यूज करने के लिए दिया। इस डेट से लेकर के इस डेट तक यूज करने के लिए दिया। इसको मैं बोलूंगा लीज पीरियड। दिस इज नोन एज लीज पीरियड। इसको हम क्या बोलेंगे? लीज पीरियड बोलेंगे। दिस इज नोन एज लीज पीरियड। जितने टाइम पीरियड के लिए एसेट ओनर ने यूजर को दिया उसको हम बोलते हैं लीज पीरियड। और हम मान लेते हैं कि जो लीज पीरियड है ये 10 ईयर्स का है। हालांकि एसेट की इकोनॉमिक लाइफ 15 साल की है, लेकिन मैं ओनर हूं, मैंने आपको ये एसेट 10 साल के लिए दिया। इज इट क्लियर टू यू? अब 10 साल तक मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता और आप इस एसेट को ऐसे यूज करेंगे जैसे आप खुद एसेट के ओनर हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कई बार जो बैंक्स या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं कि वी नीड स्पेस एंड प्रीमिसेस ऑन लीज। वो लीज को ज़्यादा प्रेफर इसीलिए करते हैं कि ओनर का इंटरफेरेंस उसमें ना हो। इज इट क्लियर टू यू? अब मैंने आपको 10 साल के लिए ये एसेट लीज पर दिया। जाहिर है कि मैं अपना एसेट आपको दे रहा हूं तो मैं फ्री में तो आपको दूंगा नहीं, आप बदले में मुझे कुछ देंगे। आप बदले में मुझे क्या देंगे? आप बदले में मुझे जो देंगे उसको हम क्या बोलते हैं? अब जो ओनर है वो लेसी को क्या देगा बदले में? ओनर लेसी को जो देगा उसको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं? सीरीज ऑफ पेमेंट। The owner or the user will pay to the owner a series of payments. बट सीरीज ऑफ पेमेंट का मतलब होता है पीरियोडिक पेमेंट्स। ये पीरियोडिक पेमेंट्स जनरली जो होती हैं वो एनुअल पेमेंट्स होती हैं। तो जाहिर है कि जो यूज़र है वो ओनर को इस दौरान 10 साल तक हमें कुछ ना कुछ पेमेंट, सालाना एनुअल पेमेंट हर साल कुछ ना कुछ देगा। उसको हम सीरीज ऑफ पेमेंट बोलेंगे। अब ये सीरीज ऑफ पेमेंट जो हैं, ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट हैं, ये सीरीज ऑफ पेमेंट ओनर के एंगल से लीज रेंटल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लीज रेंटल। दीज आर नोन एज लीज रेंटल। ओनर के एंगल से इनको लीज रेंटल कहा जाता है, जबकि यूजर के एंगल से यानी कि जो पे कर रहा है, पे करने वाले के एंगल से इनको लीज पेमेंट कहा जाएगा। जो रिसीव कर रहा है उसके एंगल से लीज रेंटल से, जो पे कर रहा है उसके एंगल से इनको लीज पेमेंट हम कहते हैं। यहाँ तक ठीक है? और जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, द ओनर ऑफ द एसेट इज टेक्निकली नोन एज लेसर। द ओनर विल बी नोन एज लेसर। ओनर को हम क्या कहते हैं? लेसर कहेंगे। जो यूजर है उसको हम क्या कहेंगे? लेसी कहेंगे। यूजर विल बी नोन एज लेसी। तो पूरी कहानी ये बन गई कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीज। The concept of the lease is that under the concept of the lease, the owner of the asset will let the asset to be used by the user for a particular specified mutually agreed period of time, and during this particular tenure, of course, owner is not going to interfere, and lessee is supposed to make some annual payments better known as series of payment, which from the point of view of the owner will be termed as lease rental, while from the point of view of the lessee will be termed as lease payments. Is it clear to you or not? Absolutely clear. अब एक और चीज मुझे बतानी है। ये जो लीज पीरियड है 10 ईयर्स का है। जब लेसर और लेसी
एग्रीमेंट करेंगे, करेक्ट। आज लेसी ने कहा कि मैं आपका एसेट 10 साल के लिए ले रहा हूं, तो क्या लेसर ऐसे ही एसेट देगा? कोई ना कोई एग्रीमेंट तो दोनों के दरमियान होगा ना। तो जिसमें एग्रीमेंट टर्म्स लिखी जाती हैं, जिस डॉक्यूमेंट में टर्म्स लिखी जाती हैं, टर्म्स, जिस डॉक्यूमेंट में टर्म्स लिखी जाएंगी, जिस डॉक्यूमेंट में टर्म्स लिखी जाएंगी उसको हम क्या बोलते हैं? लीज डीड। उसको हम बोलते हैं लीज डीड। Lease deed is a document which contains the terms and condition which is mutually agreed by what we call A and B. In this case, lessor and lessee. यहां तक बात समझ में आ गई। यानी कि अभी तक हमने क्या समझने की कोशिश करी कि पहले तो लेसर कौन है, पॉइंट नंबर 1 हमने ये समझने की कोशिश करी, लेसर इज द ओनर ऑफ द एसेट। पॉइंट नंबर 2 हमने ये समझने की कोशिश करी, हु इज लेसी, लेसी इज द यूजर ऑफ द एसेट। We try to understand the meaning of what we call lease period. Lease period refers to the period for which the asset has been delivered by the user to the lessee, and generally this period is non-cancelable. Non-cancelable. Non-cancelable means the lessee doesn't have any right to cancel it. Lessee doesn't have the right actually to cancel the lease. That is why it is known as non-cancelable period. और मैंने कहा जिस डॉक्यूमेंट में टर्म्स लिखी जाती हैं उसको हम लीज डीड कहते हैं। लीज पीरियड के दौरान पहले तो हमने पॉइंट नंबर 3, फिर पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 सीरीज ऑफ पेमेंट, देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लीज पीरियड एंड दैट इज लीज पेमेंट्स। फिर मैंने बताया इस पूरे एग्रीमेंट को हम बेसिकली क्या कहते हैं। और उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं। हमने समझने की कोशिश करी कि इकोनॉमिक लाइफ, इस केस में वैसे इकोनॉमिक लाइफ 15 ईयर्स की है, हालांकि जो एसेट दिया गया है वो केवल 10 साल के लिए दिया गया है। यहाँ तक ठीक है। तो इसका मतलब अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ लीज, तो लीज का कॉन्सेप्ट क्या है, डेट इज पॉइंट नंबर 8 तो हो चुका है, और पॉइंट नंबर 9 में मैंने यहां पर लिखा कॉन्सेप्ट ऑफ लीज। कॉन्सेप्ट ऑफ लीज, कॉन्सेप्ट ऑफ लीज। अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ लीज under the concept of lease, comma, owner of the asset, owner of the asset, owner of the asset, that is lessor, allows the lessee, allows the user या lessee that is lessee to take possession, to take possession, to take possession of the asset, to take possession of the asset for a mutually specified, for a mutually agreed, for a mutually agreed period of time, for a mutually agreed period of time known as lease period, known as lease period, against a series of payments, against a series of payments
against a series of payments known as lease rentals or payments. This is the concept of lease. Is it clear to you? This is the concept of lease. Now we shall try to find out how many types of leases are there. Leases are basically categorized into two parts, that is types of leases. Now we come over to this particular point, types of leases. Point number 10. Types of leases, correct? Types of leases. We will see that leases are basically broadly classified into two types. One, finance lease, and another one is operating lease. Finance lease and operating lease. बेटे जो लीजेस होती हैं उनकी दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती हैं, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज. फाइनेंस लीजेस एंड ऑपरेटिंग लीजेस. जाहिर है कि अब मुझे ये पता करना है फाइनेंस लीज कौन सी होती है और फाइनेंस लीज कौन सी होगी और ऑपरेटिंग लीज कौन सी होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट फाइनेंस लीज. फाइनेंस लीजेस. तो पॉइंट नंबर 11 अब हम देखेंगे कि फाइनेंस लीज बेसिकली क्या होती है. कोई भी लीज फाइनेंस लीज मानी जाएगी अगर मैं जो यहां कंडीशंस लिखूंगा इन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. मैंने क्या कहा, कोई भी लीज फाइनेंस लीज मानी जाएगी अगर जो मैं कंडीशंस लिखूंगा इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो फाइनेंस लीज मानी जाएगी. अ लीज शैल बी कैटेगराइज्ड एज अ लीज shall be categorized as a lease shall be categorized as a lease shall be categorized as finance lease if any of the following conditions 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 get satisfied, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो लीज जो है वो फाइनेंस लीज मानी जाएगी. अब हम देखेंगे कि फाइनेंस लीज में बेसिकली जो ओनर होता है वो तमाम रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफ़र कर देता है. तमाम रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है, आप ओनर हो, आपने मेरे को कोई एसेट दे दिया लीज पर. अब उस एसेट को लीज पे लेने के बाद अगर मुझे उस एसेट से कोई सडन गेन हो जाए, विंडफॉल हो जाए, तो वो जो गेन हुआ है उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है. इसी तरह उस एसेट को लेने के बाद मुझे कोई ज़बरदस्त नुकसान हो जाए तो उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है. इसीलिए हम कहते हैं कि रिस्क एंड रिवार्ड्स आर ट्रांसफर्ड. तो इसमें पहला पॉइंट ये है, पहली कंडीशन ये है, ए, ऑल द एसोसिएटेड रिस्क एंड रिवार्ड्स आर ट्रांसफर्ड. all the associated risk and rewards all the associated risk and rewards are transferred. All the associated risk and rewards are transferred. Are transferred. B. अब अगर मैं इसी एग्जाम्पल को जारी रखूं, इसमें एसेट की लाइफ 15 इयर्स तक की थी, लेकिन ओनर ने जो एसेट दिया लेसी को वो 10 साल के लिए दिया. अगर टोटल इकोनॉमिक लाइफ जो कि इस केस में 15 इयर्स की है,
अगर लीज पीरियड इज इन एक्सेस ऑफ 60% of the total economic life, then the lease will be categorized as I said, finance lease. तो फाइनेंस लीज में क्या होता है? लीज पीरियड is more than 60% of total economic life. अगर मैं लीज पीरियड की परसेंटेज कंप्यूट करूं 10 divided by 15, it will definitely be more than what we call 60%, isn't it or not? तो मेरा कहने का मतलब है द लीज पीरियड विच इज 10 years इज मोर देन 60%, या इसको ऐसे समझ लो, अगर मैं 60% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ कंप्यूट करूं, इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 15 years की है, इट विल बी 9 and lease period is 10 in this case. So lease period exceeds the 60% of economic life. Is it clear to you? So it means this particular condition is getting satisfied. तो ये दूसरी कंडीशन है. Now condition C. Condition C. Present value of minimum lease payments. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट. बेटे ये जो वर्ड है आप अभी पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं अभी अपने आप इसको एक्सप्लेन करूंगा. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स covers substantially whole of fair value और बेटे जब हम फेयर वैल्यू यहां यूज करते हैं तो बेसिकली हमारा मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट से ही है. यहां पर फेयर वैल्यू का मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट से ही है. होल ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, ऑफ द लीज्ड एसेट at inception of lease. इस लाइन का मतलब क्या है? इंसेप्शन ऑफ लीज. Try to understand this particular point because this is the major point, and most of the time you would require actually this particular point to categorize the lease either as what we call operating lease or finance lease. Correct? Now the point here is that we presume that this is the date on which agreement has taken place. Correct? Presume that this is the beginning of the current year. So this date on which agreement has taken place will be known as inceptional date. It is known as inception date. Inception का मतलब है बेटे शुरुआत, जिस दिन लीज की शुरुआत हुई. Inception date. दिस इज योर इंसेप्शन डेट, जहां से लीज एग्रीमेंट की शुरुआत हो गई, जिस दिन मैंने आपको एसेट दे दिया. तो मान लेते हैं कि इस दिन इस एसेट की जो फेयर वैल्यू है, द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, हम मान लेते हैं फेयर वैल्यू का मतलब कॉस्ट से ही है. फेयर वैल्यू या कॉस्ट ऑफ द एसेट इज इक्वल टू 100 lakhs. लो जी, इसको मैंने 100 lakhs मान लिया.
100 lakhs is the fair value of the asset, correct? और एग्रीमेंट ये हुआ कि जो यूजर है ही विल गिव मी अ पेमेंट ऑफ series of payment. We presume each year he will pay us say 12 lakhs. Each year he will pay us 12 lakhs per annum. हमने ये presume कर लिया कि fair value asset की जो है that is nothing but the cost of the asset, and at the time of inception the fair value is equal to 100 lakhs. अब बेटे मेरा क्वेश्चन क्या बनता है, मैंने आपको एक एसेट दिया जिसकी की कॉस्ट या फेयर वैल्यू 100 लैक्स की है और मैंने आपसे कहा कि आप हर साल मुझे 12 लाख 12 लाख 12 लाख देंगे। बिकॉज मैंने एसेट आपको 10 साल के लिए दिया हुआ है तो 10 साल में आपसे मुझे कितना मिलेगा? 10 साल में आपसे मुझे 10 इंटू 12 लैक्स यानी कि 120 लाख रुपए मिलेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब जो मैंने एग्जाम्पल डिराइव करा उसके मुताबिक फेयर वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू एट इंसेप्शनल डेट, एट इंसेप्शनल डेट, एट इंसेप्शनल डेट इज इक्वल टू 100 लैक्स है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे कुछ पेमेंट देंगे, सीरीज ऑफ पेमेंट। हालांकि मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब थोड़ा सा इससे अलग होता है, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग आप मान लो कि जो लेसी हमें पेमेंट कर रहा है वो मिनिमम लीज पेमेंट है, यानी कि जो लेसी हमें पैसा पे कर रहा है ही विल पे अस 12 lakhs पर एनम, not 12 lakhs per annum, and he will pay it annually for 10 years. That means all in all he will give us what we call 120 lakhs, isn't it or not? लेकिन ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये है कि इंसेप्शन की डेट को जो मेरी फेयर वैल्यू है एसेट की, जो कि इस केस में मैं 100 लाख रुपए की मान चुका हूं, आपसे मुझे जो मिल रहा है, यूजर से जो मुझे मिल रहा है, जिसको अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं एमएलपी कह रहा हूं, मिनिमम लीज पेमेंट, हालांकि अभी थोड़ी देर के बाद हम इसको डीपली समझेंगे। आपसे जो मुझे मिल रहा है 12 लाख रुपए और ऑल इन ऑल जो 120 लाख रुपीस आपसे मुझे मिलेंगे 10 सालों में मिलेंगे। ये इकट्ठे तो नहीं मिलेंगे, कुछ पैसा पहले साल के बाद, फिर सेकेंड ईयर के बाद, फिर थर्ड ईयर के बाद एंड सो ऑन। तो ऑल इन ऑल आपसे पैसा मेरे को 10 साल के बाद मिलेगा ना। तो पॉइंट यहां पर क्या है, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ेगी। मान लेते हैं इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, बेटा ये IRR नहीं है, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। ना इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10%। पहले तो इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब अच्छी तरह समझ लें। Implicit rate of return doesn't mean the rate of return which is accruing in the capital market. No, neither it refers to any bank rate of interest. Implicit rate of return का मतलब है आपस में सलाह मशवरा कर करके तयशुदा रेट, जो यूजर ने और ओनर ने आपस में मिलकर के डिसाइड करा है कि भाई हम मार्केट में कैपिटल पे 10% का रेट ऑफ रिटर्न मान के चलेंगे। दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। सो इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न डजंट रेफर्स टू व्हाट वी कॉल कैपिटल मार्केट इंटरेस्ट रेट और सिंपली SBI रेट और RBI रेट। It is mutually agreed rate. You must understand that and should not let it escape out of your memory, because during this particular chapter we shall be needing this concept too often. So this is what we call your implicit rate of return. You must understand first of all this particular point. अब मेरे को कंप्यूट करनी है प्रेजेंट वैल्यू, वो आपने बहुत बार कंप्यूट करी हुई है कैपिटल बजटिंग में, वो तो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर आती है क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। मान लेते हैं अब ये ईयर 1 है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 6, 7, स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
ये तो स्क्रीन में आ ही नहीं पा रहा है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं। चलो इसको यहाँ पर कर देते हैं। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 10% है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, करेक्ट। और जो मिनिमम लीज पेमेंट है, ये जो मिनिमम लीज पेमेंट है 12 लाख। Each year the user will pay to the lessor, the owner of the asset, rupees 12 lakh। बेटे इसको मैं बोलूँगा एब्सोल्यूट टर्म्स में जो पेमेंट मिल रही है। ये जो 12 लाख रुपए हमें मिल रहे हैं, मैं बोलूँगा ये एब्सोल्यूट टर्म्स में मिल रहे हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स का मीनिंग आप समझ में आ गया ना, यानी कि मैंने इनको डिस्काउंट नहीं करा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लूँगा एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%। सबको ये फैक्टर्स लेने आते हैं। जो भी ये फैक्टर्स होंगे आप यहां पर लिखेंगे। इन फैक्टर्स को लिखने के बाद आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपको मालूम है कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, इजंट इट और नॉट। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू, जो ये प्रेजेंट वैल्यू का टोटल होगा, ये जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल होगा, दिस टोटल विल बी टर्म्ड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। मैं इमेजिनरियली मान रहा हूं, देखो ये मैंने कोई कैलकुलेट नहीं करा, मैं इमेजिनरियली मान के चल रहा हूं कि जो टोटल आया, चलो हम ऐसे इमेजिनरियली मान के चल लेते हैं कि जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज 100 lakhs, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और मैं मान लेता हूं कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है, जो कि हम इस तरीके से कंप्यूट करेंगे, ये मैंने इमेजिनरियली मानी है, मैंने कोई कैलकुलेट नहीं करा है। इमेजिनरियली मान लेते हैं इट इज समथिंग नियर अबाउट 95 lakhs। It is something near about what we call 95 lakhs. Now if I am going to find out the percentage, that is 95 lakhs of total fair value, that is 100 lakhs into 100, of course it will be equal to 95%. So it means this particular condition is getting satisfied. That doesn't mean, condition doesn't say actually that the percentage should be absolutely equal to 100%, but it states that it should cover substantially। substantially का मतलब है पूरा का पूरा या तकरीबन पूरा का पूरा कवर करा जाए। यानी कि अगर आपकी परसेंटेज 90% भी आ जाए तो तब भी मैं मान के चलूंगा कि दिस कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड। तो कोई लीज, फाइनेंस लीज तब मानी जाती है जब इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। हालांकि कुछ और भी कंडीशन है, जैसे कि कंडीशन डी। कंडीशन डी कहती है कि लेसी shall have the right, lessee shall have the right, lessee shall have the right to purchase the leased asset, purchase or purchase the lease asset, purchase the asset or renew the lease term after the expiry of lease period, after the expiry of lease period. That means lessee will have the right under the concept of finance lease that after the end of the lease period, he may, if willing, he may actually purchase the asset. Of course, the consent of the owner will be required, no doubt about that. Or
there is a mutually implied agreement that terms of the lease terms can be renewed. जैसे कि मैंने आपको ये एसेट 10th ईयर के लिए दिया है, अब 10th ईयर के बाद आप और मैं चाहें तो मिल करके कह सकते हैं कि भाई 5 साल के लिए ये एसेट आप और ले लो, या अगर आप इस एसेट को खरीदना चाहते हैं तो ये राइट भी आपके पास है कि आप एसेट को खरीद भी सकते हैं. दैट इज जनरली दी फीचर्स ऑफ फाइनेंस लीज. इज इट क्लियर टू यू? कोई भी एक कंडीशन अगर इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी तो लीज जो कैटेगराइज होगी वो फाइनेंस लीज के रूप में कैटेगराइज होगी. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें ये है. अब उसके बाद आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए ऑपरेटिंग लीज के बारे में. मैंने कहा एक तो फाइनेंस लीज है. अब पॉइंट नंबर 12 पॉइंट नंबर 12 क्या है? ऑपरेटिंग लीज से रिलेटेड पॉइंट है. ऑपरेटिंग लीज अब ऑपरेटिंग लीज क्या है जो फाइनेंस लीज नहीं है? स्टैंडर्ड तो यही कहता है कि लीजेस अदर देन फाइनेंस लीजेस, लीजेस other than finance leases, leases other than finance leases are operating leases. ये ऑपरेटिंग लीजेस हैं फाइनेंस लीजेस के अलावा. ऑपरेटिंग लीजेस, ऑपरेटिंग लीज, इसका मतलब ऑपरेटिंग लीज वो है एज सच अंडर द ऑपरेटिंग लीज, अंडर द ऑपरेटिंग लीज under the operating lease, A, risk and rewards are not transferred. Risk and rewards are not transferred. B, lease period is less than 60% of economic life less than 60% of the economic life. करेक्ट. अब बेटे मेरे को स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वेट करें. हाँ जी, फिर पॉइंट नंबर सी पे आ जाए. पॉइंट नंबर सी में जरा स्क्रीन को भी देख लूँ क्योंकि स्क्रीन में कई बार आता नहीं है. पॉइंट नंबर सी में अब हम आ रहे हैं. पॉइंट नंबर सी में क्या हो गया? इसका मतलब हमने देखा था फाइनेंस लीज के अंदर एक तो रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफर हो जाते हैं. फिर हमने देखा था लीज पीरियड 60% से ज़्यादा होता है, इसमें 60% से कम होगा. उसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट shall be insufficient या shall not cover substantially whole of fair value of the asset on the inception date. Fair value of the asset on the inception date. इंसेप्शन डेट का मतलब है बेटे जिस दिन लीज की शुरुआत हुई, इंसेप्शन डेट. तो ये आपकी ऑपरेटिंग लीज है.
बात समझ में आ गई कि फाइनेंस लीज क्या है, ऑपरेटिंग लीज क्या है। अब एक बार जब ये पता लग गया तो अगला एस्पेक्ट जो है वो है अकाउंटिंग का। तो अब अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स पर हम आते हैं। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स अंडर फाइनेंस लीजेस, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स अंडर फाइनेंस लीजेस। लीजिए जी पॉइंट नंबर 13। अब पॉइंट नंबर 13 पे हम आ गए, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स अंडर फाइनेंस लीजेस। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स अंडर फाइनेंस लीजेस। अब फाइनेंस लीजेस के अंदर अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स की बात चलेगी। फाइनेंस लीजेस, अब अकाउंटिंग एस्पेक्ट भी जो हम देखेंगे वो लेसर की बुक्स में भी देखेंगे और लेसर की बुक्स में भी देखेंगे, करेक्ट। तो पॉइंट नंबर 13 के अंदर भी मैंने लिखा पहले ए, बुक्स ऑफ लेसर, बुक्स ऑफ, चलो पहले लेसी कर लेते हैं, बुक्स ऑफ लेसी। लेसी की बुक्स में, बुक्स ऑफ लेसी, लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी, ध्यान से समझे। अब आपने एक एसेट मेरे को दिया तो मैं अपनी बुक्स में उसको किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करूंगा। एक तो एसेट मेरे पास आया एंड टेकिंग इनटू अकाउंट सब्सटेंस ओवर द फॉर्म, आपने करा है ना इससे पहले, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। टेक्निकली स्पीकिंग यू आर द ओनर ऑफ द एसेट, आप ओनर तो हैं, कागजों पे तो आप ओनर हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रियलिटी आई एम द ओनर ऑफ द एसेट। तो टेकिंग इनटू अकाउंट सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मैं ये कहूंगा कि आई एम द रियल ओनर ऑफ द एसेट, तो आपका एसेट मेरे पास आ जाएगा एंड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट एज एन एसेट। लेकिन मैंने अब आपको कुछ पेमेंट भी तो देनी है, और मैंने आपको टोटल पेमेंट कितनी देनी है। अगर मैं उसी एग्जाम्पल को बरकरार रखूं, अगर मैं आपसे एसेट 10 साल के लिए ले लूं तो हर साल मैंने आपको 12 लाख रुपए 10 साल तक देने हैं। तो लॉजिकली तो मेरी लायबिलिटी कितने की है, 12 लाख इंटू, लॉजिकली तो मेरी लायबिलिटी इतने की होनी चाहिए, 120 लैक्स की मेरी लायबिलिटी होनी चाहिए। तो क्या मैं 120 लैक्स पर अपनी लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करूंगा? नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, नो डाउट, पहले तो भूलना नहीं है कि इन रियलिटी आई एम गोइंग टू पे यू 120 lakhs over a period of 10 years, but I will compute the present value of this payment because I am taking the facility of time period, क्योंकि मैं को आपसे टाइम पीरियड की मोहलत मिल रही है, 10 साल का लंबा और तवील अरसा मुझे आपसे हासिल हो रहा है, इस 10 years में मेरे को आपको पेमेंट करनी है। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू का मैं टोटल कर दूं और वो मैं इमेजिनरीली मान लूं, हमने उस केस में कितना माना था, 95 lakhs माना था, तो 120 lakhs वैसे तो मैं आपको एब्सोल्युटली पे करूंगा, लेकिन जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है वही मेरी रियल लायबिलिटी है। इसका मतलब है कि आई एम सपोज टू पे यू 120 lakhs इन एब्सोल्यूट टर्म्स, बट इन रियलिटी आई एम पेइंग यू ओनली 95 lakhs and rest of 25 lakhs will be treated as interest and this will be your principal amount। बात समझ में आ गई? जो 120 लाख रुपए की मेरे को आपको पेमेंट करनी है, उसमें से जो टोटल बनेगा प्रेजेंट वैल्यू का, डेट इज माय रियल लायबिलिटी। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपकी जो लायबिलिटी होगी वो तो प्रिंसिपल अमाउंट होगी, और ये जो बाकी पैसा आप दे रहे हैं 25 लाख, ये आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने 10 साल का वक्त मांगा है, आप 10 years में ये पेमेंट कर रहे हैं ना। और अकाउंट्स में तो हमें मालूम है कि कोई भी पेमेंट जो हम टाइम फैक्टर के लिए करते हैं वो पेमेंट हमेशा इंटरेस्ट की पेमेंट होती है। तो इस पहला पॉइंट क्या है कि लेसी जो इसको रिकॉग्नाइज करेगा अपनी बुक्स में, बोथ एज एन एसेट एंड ए लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगा, और किस वैल्यू पे करेगा, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। बात समझ में आ गई? लेसी इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज द एसेट या फाइनेंस लीज बोथ एज एन एसेट एंड ए लायबिलिटी, क्योंकि उस एसेट उसके पास आ रहा है और मैंने आपको पेमेंट देनी है, लेकिन मैं इसको किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करूंगा, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और व्हाट वी कॉल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
मिनिमम लीज पेमेंट। अब कहने के लिए तो स्टैंडर्ड कह देता है कि आपने इसको लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और मिनिमम लीज पेमेंट पर रिकॉग्नाइज करना है, पर हकीकत तो ये है कि प्रेजेंट वैल्यू विल ऑलवेज बी लेसर देन द फेयर वैल्यू, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो मनी है वो डी वैल्यू होता चला जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट जो आपका बन जाएगा बुक्स ऑफ लेसी में, पॉइंट नंबर 1 यही है, लेसी विल रिकॉग्नाइज द एस फाइनेंस लीज, lessee will recognize finance lease, lessee will recognize finance lease, lessee will recognize finance lease both as an asset, and liability, फाइनेंस लीज यानी कि एसेट एंड लायबिलिटी, फाइनेंस लीज विल बी रिकॉग्नाइज्ड at lower of a cost या फेयर वैल्यू, जिसको तुम कहते हो कॉस्ट और फेयर वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, इन दोनों में से जो छोटी फिगर होगी उस पर आप रिकॉग्नाइज करेंगे। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक पॉइंट बताया, अगर मैं अपने इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं तो मुझे टोटल पेमेंट तो 120 lakhs की करनी है, लेकिन 120 lakhs की जो मैं पेमेंट कर रहा हूं उसमें से बेसिकली मेरी लायबिलिटी कितने की है, दिस इज माई लायबिलिटी 95 lakh एंड 25 lakh विल बी कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि हर बार जब मैं आपको 12 लाख रुपए की पेमेंट करूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहली पेमेंट 12 लाख रुपए की करी, अब ये जो 12 लाख रुपए की मैं आपको पेमेंट करूंगा इसमें कुछ तो मैं लायबिलिटी के लिए पे करूंगा और कुछ मैं इंटरेस्ट के लिए पे करूंगा। इसी तरह जब मैं सेकंड पेमेंट करूंगा तो सेकंड पेमेंट भी कुछ लायबिलिटी के लिए कुछ इंटरेस्ट के लिए पे होगी, एंड सो ऑन टिल अप टू 10th ईयर। जब मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं क्वाइट ऑब्वियसली मैं कुछ लायबिलिटी के लिए पे कर रहा हूं और कुछ मैं इंटरेस्ट के लिए पे कर रहा हूं। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कहता है कि लेसी जब भी अपनी बुक्स में पेमेंट करेगा उस पेमेंट को बाइफरकेट करना पड़ेगा। बाइफरकेट का मतलब है उसको अलग अलग करना पड़ेगा। कुछ वो हिस्सा जो मैं प्रिंसिपल यानी कि लायबिलिटी के अगेंस्ट पे कर रहा हूं और कुछ जो मैं इंटरेस्ट के लिए पे कर रहा हूं, हालांकि हम यहां पर वर्ड इंटरेस्ट यूज नहीं करेंगे, हम यहां पर फाइनेंस चार्जेस यूज करेंगे, लेकिन बात एक ही है, उसका मतलब इंटरेस्ट ही है। तो हर बार जो मैं आपको पेमेंट करूंगा उस पेमेंट को मुझे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा बिटवीन व्हाट वी कॉल टू पार्ट्स, दैट इज पेमेंट टूवर्ड्स लायबिलिटी पार्ट एंड पेमेंट्स टूवर्ड्स फाइनेंस चार्जेस। Lease payments shall be bifurcated between A, payment towards liability, payments towards liability, and B, payment towards finance charges, payments towards finance charges, payments towards finance charges।
पेमेंट्स टूवर्ड्स फाइनेंस चार्जेस। तो लेसी अपनी बुक्स में जो भी पेमेंट करेगा, कुछ तो मैं लायबिलिटी के लिए पे कर रहा हूं और कुछ मैं फाइनेंस चार्जेस के लिए पे कर रहा हूं। और बिकॉज लेसी एसेट का ओनर माना जा रहा है, एज पर सब्सटेंस ही विल प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन ऑल्सो। लेसी shall also provide lessee shall also provide depreciation. Lessee shall also provide depreciation in accordance with AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10, जिसका कि ताल्लुक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से है, तो मैं डेप्रिसिएशन भी दूंगा। फाइनेंस चार्जेस एंड डेप्रिसिएशन shall be written off to statement of profit and loss account। तो जो मैंने फाइनेंस चार्जेस वगैरह पे करे हैं उसको फिर हम राइट ऑफ भी करेंगे। ठीक है बेटे, इतना काफी है। फिर नेक्स्ट सेशन में आपकी और मेरी मुलाकात होगी।